In our previous video, we had seen the first method to rectify the error in distribution of profit among the partners. We know that there are two methods to rectify the wrong distribution of profit among the partners, that is past adjustment. We call it as past adjustment. It means whenever after preparing profit and loss appropriation account, when it comes to our notice that the profit was distributed wrongly among the partners, or we have omitted some distribution which we have to make to the partner, in this case we rectify the error by two methods. The first method was to pass a single journal entry, which we had seen in our previous video. In that method, that is by passing a single journal entry, we used to rectify the error by passing a single entry, that is by making the adjustment through the capital account of the partners. In that method, we used to prepare a table that used to show all the adjustment that is to be made, and after that, with the help of the table, we used to pass a single adjustment entry in which the capital account of the partner who will pay the amount used to be debit, and the partner who should receive the extra amount was credit. Now let us see the second method to rectify the error, and the method is when adjustment journal entries are passed. In the first method, we used to pass a single entry. Now in the second method, we are going to pass journal entries. Now whenever such type of questions that is related to past adjustment come in your board exams, you have to identify the method by yourself. It means after seeing the question, after reading the question properly, you have to see whether the question is asking to pass a adjustment entry or whether the question is asking to pass necessary adjustment entries. This you should see carefully while solving the question. Now let us start with our second method. Let us take an example to understand, to rectify the error, that is past adjustment, when we pass journal entries to rectify the errors. Now note down this question in your notebook first, and after that see the solution, how you have to solve this question. Let us start. P, Q and R are partners in a firm. Their capital account stood at rupees 3 lakh and rupees 1,50,000 and rupees 1,50,000 respectively on 1st April 2020. It means that there are three partners PQR whose capital are P rupees 3 lakh, Q rupees 1,50,000 and R rupees 1,50,000. As per the provision of the deal, R was to be allowed a remuneration of rupees 36,000 per annum. Interest at 5% per annum was to be provided on capital, and profit were to be distributed in the ratio of 2:2:1. Ignoring the above terms, net profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2020 was distributed among three partners equally. Pass the journal entries to rectify the above errors. Now see the question. The question is saying that there are three partners PQR, and now what we have done in the previous year, that is in the year 2019-20, we had prepared the profit and loss appropriation account, and the net profit for the year ended 31st March 2020
that is for the 31st March 2020 the net profit was rupees 1,80,000. Now this 1,80,000 we have distributed among the 3 partners equally. This was the mistake made by us. We have distributed the entire profit in the ratio of 1:1:1, but this was the wrong distribution. The correct distribution was, before distributing this profit, that is 1,80,000, we were required to give remuneration, that is salary to our 36,000 जो हमने नहीं दी है, and interest at 5% per annum to be provided as capital. इंटरेस्ट देना था 5% पर एनम कैपिटल पे, ये भी हमने नहीं दिया है. एज वेल एज जो प्रॉफिट था उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना था इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. बट अगेन वी हैव मेड द मिस्टेक, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस प्रॉफिट इक्वली. तो हमसे यहाँ पे गलती हुई है. सबसे पहले प्रॉफिट जो था वो 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो कि हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. बट 2:2:1 के रेशियो में हम तब डिस्ट्रीब्यूट करते जब हम पहले सैलरी दे देते और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देते. इसी के बाद हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते. बट दिस वॉज आ मिस्टेक. नाउ let us see the solution, but before seeing the solution, see, we will have to prepare the journal entries. Now the question is saying to prepare the journal entries. Now let us start with preparing the journal entries. We are going to do the same thing which we used to do in single adjustment entry. It means first take back all the profit which you have distributed, but the difference will be we are not going to prepare an adjustment table, and neither we can prepare profit and loss appropriation account, because once we have prepared the profit and loss appropriation account for a given year, it cannot be prepared again. एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया तो हम उसे वापस नहीं बना सकते. दैट्स वाई ये करेक्शन जिससे होगा उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. यानी जब आपको जर्नल एंट्रीज पास करने को कहा जाएगा तो जो भी इफ़ेक्ट आप करोगे, पहले तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का रॉन्गली हुआ है. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो इफेक्ट होगा. बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ जो दूसरा अकाउंट जिसमें हम ये सारा अमाउंट डालेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, बिकॉज वी आर डूइंग रेक्टिफिकेशन. और रेक्टिफिकेशन के टाइम पे हम अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन नहीं कर सकते. सिंपली इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब जो सारी ट्रीटमेंट सेम ट्रीटमेंट जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से करते थे, अब हम दूसरे अकाउंट से करेंगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. नाउ अब हमें ट्रीटमेंट करना क्या है. सबसे पहले आपने क्वेश्चन सही तरीके से देख लिया. अगर नहीं देखा है तो क्वेश्चन अपने आंखों के सामने रखो और फिर सोल्यूशन को देखो. सबसे पहले हमने गलती क्या की है. गलती हमसे ये हुई है कि हमने जो नेट प्रॉफिट था 1,80,000 का, उससे गलती से पार्टनर्स को 1:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ये गलती थी. तो सबसे पहले अपने गलती को रिवर्स करो. अब गलती करते वक्त हमने क्या किया था, पार्टनर्स को दिया था. यानी पार्टनर्स को अगर हमने ये प्रॉफिट दिया है, इट मीन्स वी हैव क्रेडिटेड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो जिस टाइम हम पार्टनर्स को कैपिटल देते हैं, यानी एनीथिंग, अगर हम कुछ भी पार्टनर्स को देते हैं तो वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है. तो दैट्स वाई ये 1,80,000 हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था.
अब आपको उसका रिवर्स करना है, यानी आपने पार्टनर्स को ये अमाउंट दी थी तो उस टाइम पे अकाउंट पार्टनर्स का क्रेडिट हुआ था, अब ये पैसा उनसे वापस ले लो। आपने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था? 1:1:1 के रेशियो में, यानी आपने 1,80,000 को 3 हिस्सों में बांट के हर एक पार्टनर को 60,000, 60,000 और 60,000 रुपीज़ पे किए थे। अब उसका रिवर्स करके हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट कर दिया। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी से वापस ले लिया 60,000 रुपीज़। क्यूज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू से वापस ले लिया 60,000 रुपीज़। एंड आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर से भी आपने वो पैसे वापस ले लिए। दैट्स वाई हमने उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। बट अब क्योंकि ये पास्ट एडजस्टमेंट है, यानी पिछली गलती को सुधारा जा रहा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से होगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। तो यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ अकाउंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सिंपली इसका मतलब होता है पार्टनर से पैसा लेके आपने इस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, यानी आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 1,80,000 आ गए। अब जो गलती पहले हमसे हुई थी वो हमने रेक्टिफाई कर दी है, 1,80,000 वापस रिटर्न लेके एक दूसरा अकाउंट ओपन करके उस अकाउंट में हमने रख दिया। अब आपको सेम ट्रीटमेंट करनी है जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करते थे। अब ये सोच लो, जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपके पास नेट प्रॉफिट आता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इन द सेम वे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में आपके पास 1,80,000 रुपये आए और वो किसने दिए? तीनों पार्टनर ने। अब ये 1,80,000 P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में है और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग दी पार्टनर्स। लेट मी शो यू हाउ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट। सी, इन वर्किंग नोट you are going to prepare profit and loss adjustment account. In your working note, prepare profit and loss adjustment account. Then we will see the journal entries once again. First see this working note. आपने PQR से जो पैसा लिया वो आपने इसके क्रेडिट साइड में लिख दिया, आप लेके आ गए। अब आपको करना क्या है? आपने इसकी जर्नल एंट्री पास कर दी थी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जर्नल एंट्री किस तरह से पढ़ी जाती है ये आपको पता है, क्योंकि इस अकाउंट के क्रेडिट साइड है ये सारी चीज़ें, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिट एंड पी क्यू एंड आर्स अकाउंट विल बी डेबिट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आफ्टर टेकिंग बैक द प्रॉफिट, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अब आप इसका करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। अब सबसे पहले आपको पता है कि आपको आर को रेम्यूनरेशन देना है 36,000। तो अगर आप आर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो, यानी उसे सैलरी पे करोगे, तो ऑब्वियसली राम का कैपिटल इंक्रीज होगा, और कैपिटल इंक्रीज होगा तो कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिट and profit and loss adjustment account will be debited 36,000. After that you have to pay interest on capital at 5% per annum. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 5% पर एनम के हिसाब से। तो आपको पता है P का जो कैपिटल था वो 3 लाख था, Q का कैपिटल 1,50,000 था और R का कैपिटल 1,50,000 था। सो अकॉर्डिंगली P के कैपिटल का 5% दैट इज़ 3 लाख का 5% 15,000, Q के कैपिटल का 5% दैट इज़ 1,50,000 का 5% इज 7,500 एंड R के कैपिटल का 5% दैट इज़ 1,50,000 का 5% 7,500। इट मीन्स 30,000 आप तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे। आफ्टर दैट देयर इज़ नथिंग टू बी पेड, सो बैलेंस द अकाउंट, बोथ द अकाउंट, टोटल होगा आपका 1,80,000 और यहाँ पे भी 1,80,000। आफ्टर दिस नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एज यू डू इन द केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन द सेम वे फ्रॉम 1,80,000
subtract this two amount and the difference will be 1,14,000, and this will be the profit left after the appropriation, which will be distributed in the ratio of 2:1. तो 2:1 के रेशियो में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ये आप लेजर अकाउंट वर्किंग नोट में बनाओगे, and with the help of this you are going to pass the journal entries. Yes, we had seen the first entry आपको समझ में आ गई। पहले आपने P, Q और R से पैसे वापस कर लिए, इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आपने उसे डाल दिया। नाउ आफ्टर दिस सी द सेकेंड एंट्री में आपने पे किया है, यस, सेकेंड एंट्री में आपने पे किया है आर को सैलरी, दैट इज रेम्यूनरेशन। तो बिकॉज यू आर पेइंग टू आर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड डेबिट करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। सिंपली द डिफरेंसेस ऑफ द नेम, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जगह हम नाम ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, क्योंकि रेक्टिफिकेशन करते वक्त सेम अकाउंट से रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई when you are paying to a partner, then partner's capital account will be credited and debit जो होगा वो है profit and loss adjustment account. When you are taking back anything from the partner, partner's capital account will be debited और जो credit होगा वो है profit and loss adjustment account. सेकेंड एंट्री क्लियर हो गई, आर को रेम्यूनरेशन पे करना है। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, अगेन वी आर पेइंग द इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे और डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आफ्टर दिस लास्ट एंट्री विल बी रिलेटेड टू द distribution of this profit, distribution of our profit yes, last entry will be related to the distribution of profit. This one, the entry will be profit and loss adjustment account debit. See, profit and loss adjustment account के हमने डेबिट साइड लिखा है, दैट्स वाई एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, नॉट एप्रोप्रिएशन, इट इज एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P's capital account, to Q's capital account and to R's capital account. This is profit and loss adjustment account, not appropriation account. Please make the necessary correction. It is profit and loss adjustment account because we are not going to write it as profit and loss appropriation account. So hope you understood how we are going to solve the questions related to past adjustment when journal entries are passed, not a single entry but adjustment entries are passed. You just has to remember all the treatment will be same as you do in the profit and loss appropriation, but the name will be different, that is instead of profit and loss appropriation all the rectification will be done from profit and loss appropriation